سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے. خوب سمجھ لو, ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, پھر کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آئی. لوگ نا مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف. ہم بیوقوف ہوتے ہیں نا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہو, ہماری اتنی بیگمات نہ ہوتی. بیوقوف آپ لوگ ہو جو ان کی باتوں میں آ گئے ہو, اپنی خوشیوں کو بھی برباد کر دیا, خاندانوں کو بھی تباہ کر دیا. سب سے زیادہ محبت مرد کو عورت سے ملتی ہے. آج ڈپریشن کے لیے کیا کچھ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے. سکون ڈپریشن کی الٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیچرلی جو انسان کے سکون کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا مرد کے لیے, وہ کیا ہے؟ عورت ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو اسی سے دور بھاگ رہا ہو یا غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا ہو جس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, وہ لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری تو اتنی گرل فرینڈز ہیں. دیکھو, گرل فرینڈ آپ کے ساتھ رہنے کی پابند نہیں ہوتی, وہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. وہ ڈپریشن کم نہیں, ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. جبکہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے. تو یہ جو احساس ہے نا مرد کو کہ یہ میری ہے, جب تک میں طلاقیں نہیں دوں گا, خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا, یہ کہیں جا نہیں سکتی, اس کا جانا انلیگل ہوگا, یہ چیز مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. اب یہ پتا ہے کہ میری ہے یہ, ورنہ آپ کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو وسیم اچھا لگ رہا ہے, کبھی غفار اچھا لگ رہا ہے, گرل فرینڈ میں تو یہی ہے نا. تو یہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں جا کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے, دیکھ لو جا کے. اب عورت کو بھی جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہیں جا نہیں سکتی, سوال پیدا تو عورت تو پابند ہو گئی نا, اس کو کیسے سکون ملے گا جب اس کے پاس ایک دوسرے مرد کا آپشن ہمیشہ کے لیے ختم. اس کو بھی اب نبھا کر کس کے ساتھ کرنا ہے پتا ہے بھائی, اب میرے مقدر میں کون ہے, یہ ہے. اب اس کو بھی یہاں سکون ملے گا جب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا. دیکھو, بوفے میں جا کے ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آدمی کہتے بریانی کھاؤں یا کباب کھاؤں یا میں وہ کھاؤں, ابے بٹیر کھاؤں, کیونکہ کل پشاور والوں نے بٹیر کھلایا مجھے. پشاور میں نے چپلی کباب دیکھا گول قسم کا, میں نے کہا بھائی یہ چپلی کباب بڑا اچھا بنتا ہے نا, تو یہ ڈیزائن کیوں چینج ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایسے. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے نا کراس بریڈنگ کی ہے چپلی کباب کے ساتھ, یہ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں ایسا چپلی کباب وجود میں آیا ہے, ورنہ چپلی کباب کو تو کہتے ہی چپلی اس لیے کہ چپل کی طرح ہوتا ہے نا, وہ ایسے چپٹا ہو. فارمی مرغیوں کی نسلیں چینج ہو گئی, ہر چیز کی چینج ہو گئی, کباب کی بھی نسل بھی. اس کو میں نے کہا شامی کباب کے ساتھ کراس بریڈنگ ہوئی ہے اس کی, یا کوفتے کے ساتھ لگ رہا تھا مجھے, کیونکہ نہ پورا چپٹا تھا نہ کوفتے کی طرح گول تھا, بیچ کی کوئی. تو یہ کوفتے کے ساتھ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں وجود میں آئے. ذائقہ بہرحال اس کا وہی تھا. ابھی اس کراس بریڈنگ میں خالی شکل چینج ہوئی ہے, اگلی نسل میں چپلی کباب کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار جو روایتی کھانا ہے نا پشاور کا, اس کو تو ویسے ہی رہنے دو میرے بھائی. اس کو اگر کراس بریڈنگ کر کے کوئی نئی چیز بنانی ہے تو اس کو نام کچھ اور دے دو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا خیر, کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں, بوفے میں جاؤ تو ٹینشن کم نہیں ہوتی. تبھی بوفے میں لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں ویسے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یا ٹرائی کر لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو اور ایک قسم کا کھانا آپ کے سامنے آ جائے اور وہ ہو آپ کا مرغوب ہو, آپ کی مرضی کا ہو, تبھی بیگم اپنی مرضی کی ہو تو پھر سکون دیکھی. اگر کسی نے لا کے پہنا دی ہے پھر تھوڑی, یا بعض دفعہ کوئی لا کے نہیں پہناتا, خود پہن جاتی ہے, وہ الو بنا لیتی ہے کوئی. پاس فیس بک پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو خیر, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا حل کس چیز میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ٹینشن میں تھے, تو یہ لبرل لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ان کمبختوں کی 35 37 40 سال پڑھائی لکھائی میں عمر گزر جاتی ہے. یہ تو ڈپریشن کے پورے کنستر ہے میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ خدا نے جو ڈپریشن دور کرنے کے لیے بیوی کو پیدا کیا تھا اس سے یہ دور رہتے ہیں, اور ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں جس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس سے یہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تو میں تو اس پہ, یہ لوگ جب آتے ہیں نا میرے پاس کے ٹینشن, میں کہتا ہوں ابے تو زندہ کیسے ہے بھائی, تجھے تو مر جانا چاہیے. نیچر سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا. پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے, بیٹے بیٹیاں چاہیے, وہ نہیں ملے وہ 100 دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ وہ ٹینشن میں ہوگا. دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, وہ بتائے گا. ڈپریشن کا اظہار نا لوگ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے. تھرمامیٹر لگائیں گے تو پتا چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا ہے. تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایب نارملٹی ہے نا, بلا وجہ ہنس رہے ہیں, بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق, ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, آگے گھس رہے ہیں, یہ بھی بہت دفعہ, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ, بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ایب نارملٹی والی کیفیات ہوتی ہے اس کی, وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے, یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے, حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وہ بتکلف ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ, کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے. ان کو ہنسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نارمل نہیں ہو رہے, تو بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں, یعنی تو آج کی دنیا میں
अक्सरियत, अगर मैं हल्फिया कहूँ ना अक्सरियत डिप्रेशन की मरीज है तो मेरी ये बात गलत नहीं हूँ। नॉर्मल मैंने सिर्फ उलमा और बुजुर्गों में ही देखे, मादरत के साथ, ये दीनदारों में देखे, वरना हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसकावा होगा। पूरा सेट, आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूँ, ये जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा थोड़ा सा कहीं ना कहीं से फरमा जो फ्रेम है ना वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा होगा। वजह क्या है? नेचुरल लाइफ ही नहीं है। तो तमीज की एक जिंदगी थी, पाले होते, निकाह करते, बीवी होती, बच्चे होते, सही है ना, फिर कमाने की फिक्र करते, दुनिया को मुसाफिर खाना समझते, मरते हुए लोगों से इबरत हासिल करते। भाई जो कमा लिया ठीक है, नहीं कमा लिया तो पहले जमाने में ऐसे ही होता था, किसी के पास पैसा आ गया, किसी के पास नहीं आया तो नहीं आया तो कह रहे चलो यार गरीबी है, हमारे गरीब खाने में कभी तशरीफ लाए, बस ये कह के इंजॉय करता था लाइफ को। अब तो भाई ऐसा पागल हो गए हैं यार, दीवारों ईंटों से ऐसा दिल लगा लिया है, जिसके पास पैसे नहीं है वो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है, वो इसकी टेंशन में जाएगा, जिसके पास दौलत आ गई वो शो मारते मारते ही नहीं थकेगा। क्योंकि जब इज्जत जिल्लत का मयार दौलत है, कल मैं किसी से पास बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आईफोन ज्यादा अच्छा है या सैमसंग, कोई माहिर था, माहिर फोन ही याद, तो जो जिस फील्ड का माहिर होता है ना मैं उससे नॉलेज बहुत लेता हूँ, तो मैंने कहा ये बड़े लोग इसमें बड़ा मुनाजरे होते हैं जी, आईफोन होना चाहिए, कोई कहता है वो उसकी एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल है, कोई कहता है नहीं सैमसंग होना चाहिए वो आसान है, कोई कहते नहीं आईफोन है, कोई कहता है नहीं जी शशके हैं बस, वगैरह वगैरह। तो बंदा बैठा हुआ था, उसने पेशावर की बात कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला मुसाब जो भी आपको आईफोन वाला नजर आएगा ना जेब में यूं करके निकाला हुआ होगा, यही इसकी अलामत है कि इस आईफोन वाले साई की हो। मैं नहीं कहता सारे साई की हो, यार इनको पता है मुश्किल है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, बहुत मुश्किल है, चीजें आसानी से डाउनलोड नहीं होती, हर एप्लीकेशन की पेमेंट देनी पड़ती है वगैरह वगैरह, और लेकिन फिर भी इतने महंगे महंगे फोन रखे। अच्छा जितने वहाँ आईफोन वाले बैठे हुए थे ना सबने जेबों से बाहर निकाला हुआ था, और वाकई यही स्टाइल था, आधी आधी जेबें थी और 3 कैमरे जो होते हैं ना वो नजर आ रहे। मैंने यूं करके देखा, सैमसंग वालों ने सबने, मेरा भी सैमसंग है ना यहाँ जेब में रखा होता है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, बहुत से लोगों को, मुझे क्या पता भाई मोबाइल में आईफोन अच्छा है या सैमसंग अच्छा है, कुछ लोगों के लिए आईफोन है, कुछ के लिए सैमसंग है, यानी एंड्रॉइड है, तो वो तो एक अलग बहस है। लेकिन इतनी बात जरूर है क्योंकि आईफोन की एक मांग है ना सोसाइटी में, तो अक्सर आपको आईफोन वाले डिप्रेशन की वो लोग मरीज नजर आए, उनको ये शौक होगा ये दिखाएं जिससे मेरी सोसाइटी में क्या हो, इज्जत। अब आप बताओ यार, तुम जब इज्जत जिल्लत का मयार इन चीजों को बनाओगे ना, थोड़ी सी इज्जत हो जाएगी, उसके बाद नहीं हो, क्योंकि ये जवानी आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कती है। दौलत भी ऐसी चीज है ना, जब कुर्बानी का गोश्त तकसीम होता है तो आपने देखा बहुत से गरीब मसाकिन भी जब उनको पता चल जाता है कि ये डिवाइड होने वाला है, जब जानवर ज़बा होता है कोई गरीब आपके करीब आएगा नहीं आएगा, खाल उतर रही होती है, गरीब वो 6-6 किलोमीटर दूर से गुजर रहे हो, जहाँ 7 हिस्से लगे, अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ गुरबा भी हैं तो वो बेचारे गरीब मिस्किन भी लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। यही हाल होता है आपके पास जब करोड़ों अरबों की दौलत है और दीन नहीं है, औलाद को भी आपने दीन नहीं सिखाया, आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके बच्चे नदीदों की तरह अप्पा की बोटियां नोचने के लिए खड़े हो जाते हैं, अभी अप्पा मरेगा और पैसा मिले। मैंने किसी गरीब को नहीं देखा कि अपनी माँ के मरने के बाद अपने बाप को शादी से रोका हो। मालदारों को बहुत देखा है, अरबपति हैं, पता है हमें विरासत में 1-1 अरब रुपए तो मिलेगा, लेकिन बाप को शादी नहीं करने दे रहे माँ के मरने के बाद। दूसरी तो जिंदगी में तो दूर की बात है, माँ के मरने के बाद नहीं करने दे रहे कि 12.5% बेवा के पास चला जाएगा। तो है यार तुम्हारी जिंदगियों पर बाप के साथ ये सलूक कर रहे हो यार। ये सारे लाइव देखे हुए वाकयात बता रहा हूँ मैं, कोई अखबारों की न्यूज नहीं बता रहा मैं, हमारे पास केसेस आते हैं और दाढ़ियों वाले भी है इसमें। इसका मतलब ऊपर से दाढ़ी है अंदर दाढ़ी नहीं है, जिक्रुल्लाह नहीं है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जो मैंने कहा ना कि अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है, तो अल्लाह दिल में है ही नहीं। दिल को सुकून तो जब मिलेगा दिल में अल्लाह होगा ना। दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं दिलों के अंदर, गटर। हमारे हजरत फरमाया करते थे देखो अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना भाई, बाज लोग ऐसे हैं उनकी सोहबत में बैठो अल्लाह की मोहब्बत के ना चश्मे उबल रहे होते हैं, आप भी उन चश्मों से सैराब हो। हम जब अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की महफिल से उठते थे ऐसा लगता था बिल्कुल दुनिया की कोई 2 टके की हैसियत। हालांकि हजरत को बहुत पैसे वाले थे, वरना पैसे वाले के पास बैठ के तो दुनिया की मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती। हमारे हजरत के पास पैसा बहुत था मगर बैठने के बाद दुनिया की मोहब्बत बढ़ने के बजाय कम। इतना पैसा था कि घड़ी हजरत की लाखों रुपए की थी, ये जो घड़ी है लाखों रुपए की घड़ी, लाखों रुपए की गाड़ियां। वो कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी थी हजरत ने, यहाँ हजरत को हजरत की शान के मुताबिक गाड़ी मिल नहीं रही थी, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी, और घर ऐसा लग्जरी बनाया हुआ था हजरत ने। जाती घर नहीं था लेकिन जो घर था वो बहुत सजाया हुआ था, बहुत एयर कंडीशन के बगैर रहते नहीं थे, ऐसे हो खाने पीने बड़े खानदानी किस्म के। लेकिन वहाँ बैठने के बाद बात बजाय दुनिया की मोहब्बत पैदा होने की क्या हो रही है? बोलो कमाल तो यही है ना। देखो जिसके पास कुछ है ही नहीं वो अगर बातें करे दुनिया कुछ भी नहीं, आप कहेंगे तेरे को क्या पता, तेरे पास पराठे के पैसे तो है नहीं, क्या ख्याल। जैसे जब मैं दूसरी जाति को बयान करता हूँ ना, बहुत से लोग मुखालफत करते हैं, कुछ तो नजरियाती तौर पे करते हैं, कुछ ले करते हैं कि वो दम ही नहीं है उनमें, या उनको रिश्ता ही नहीं मिल रहा हो, या उम्र इतनी हो गई है, और कुछ नजरियाती तौर पे भी कर रहे होते हैं। तो हजरत के पास जब हम बैठते थे, हजरत के पास दौलत
बरसात पे, और ऐसी नोटों की गड्डियां आती थी जो जमीनों के जब आता था ना वो कटाई के पैसे फसल के, और ये भी हजरत को बहुत मिलते थे, हजरत के चाहने वाले बहुत, तो ऐसे नोटों की गड्डी रखी होती थी। तो इतनी नीचे नहीं, मेज थोड़ी ऊपर थी, यूं समझ रहे आप, ठीक है, इतनी गड्डी भी बहुत है मेरा। हजरत क्या करते थे, जो अपना महीने का खर्चा था ना हजरत का, जो शाहाना स्टाइल, उस स्टाइल के पैसे निकाल लेते थे, उसमें गैस बिजली का बिल, माहाना खाने पीने का खर्चा, बाकी सारा सदका। बाकी सारा क्या भाई, ये चीजें तो एक दफा खरीद जाती है, घड़ी अच्छी ले ली, गाड़ी अच्छी ले ली, और बच्चे चूंकि हजरत के सारे स्टेबल थे, मदीना यूनिवर्सिटी चले गए थे सऊदी अरब पढ़ लिख के, तो बच्चों के फिर हजरत ने फिक्र ही नहीं की कि बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाओ, ये करूँ वो करूँ, ना बच्चे खुद हजरत बल्कि अपने बच्चों के बारे में कहते थे नेक होंगे तो अल्लाह खिलाएगा, नहीं होंगे तो फिर क्यों खाए भाई वो, ठीक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो नेक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आलिम बने मदरसे में, फिर मदीना यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया, फिर वहां से मुख्तलिफ मुल्कों में तबलीग के लिए तशकील हो, तो खुद स्टेबल हो गए। तो हजरत ने फिर घर ही नहीं बनाया कि हमने क्या करना है, करते बच्चे भी स्टेबल हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, तो हमने घर बना के क्या कर, तो जितना पैसा आ रहा है जाती घर एक इंच भी जगह नहीं ली। मेरा आखिरी उम्र में मैंने बताया ना बार बार, जब अल्लाह बहुत ज्यादा दे कि आप खुराक भी अच्छी कर लो, लिबास भी अच्छा कर लो, और बच्चों की तालीम पे भी खर्च कर लो, सवारी अच्छी कर लो, फिर अगर बच रहा है तो यार प्रॉपर्टी पे लगो, क्योंकि प्रॉपर्टी पे लगता बहुत है। इतनी प्रॉपर्टी की से हमें मोहब्बत नहीं होनी चाहिए जितना उस पे लग रहा है, यानी लग रहा बहुत ज्यादा है और उसका आउटपुट इतना नहीं है जितना हम समझ रहे होते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए लेनी है तो एक अलग बात है, वो तो बिजनेस तो फिर हर तरह के जायज है ना। आप प्लॉट ले रहे हो ताकि मैं बेच दूं, या घर खरीदा ताकि मैं महंगा होने पे बेच दूं, वो तो एक बिजनेस है। अपने रहने के लिए दीवारों ईंटों पे इतना ठोस देना जबकि उम्र आपकी, तो जिसको बहुत पैसा दिया वो कर ले, नहीं दिया तो भाई ये मुसाफिर खाना है, दीवारों ईंटों से दिल नहीं लगाना। तो हजरत ने नहीं बनाया। बिल्कुल आखिर उम्र में फिर हजरत ने अपनी अहलिया के लिए एक फ्लैट ले लिया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद इनके पास क्या हो जाए, ठिकाना हो जाए, क्योंकि बच्चे चूंकि बाहर थे तो जरूरत उसकी भी नहीं पड़ी, तो वो भी अपने लिए नहीं लिया, अपने लिए किराए के घर में ही रहना है, क्योंकि क्या जरूरत है भाई दीवारों ईंटों से दिल लगा। लेकिन उस घर को ऐसा सजाया हुआ था। अब हजरत अगर फिक्र करते ना शुरू से अपना घर, तो घर तो शायद अपना हो जाता, ना सजाया हुआ होता, ना खुराक अच्छी होती, ना गाड़ी अच्छी होती, ना घड़ी सही होती। अच्छा, घड़ी की ये नहीं कि कोई हीरे जवाहरात छिछोर बना जो से होता है, हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे उसमें, वो घड़ी मयारी होने की वजह से महंगी, तो इतनी दौलत थी। लेकिन जब हजरत के पास बैठते थे तो दुनिया की मोहब्बत बढ़ने के बजाय क्या होती थी, कम होती। वजह उसकी ये थी कि दिल में दुनिया नहीं थी, दिल में दुनिया नहीं। तो हजरत फरमाया करते थे, बाज लोग दाढ़ियां भी हैं, नमाजी भी हैं, लेकिन जब आप उनके साथ बैठो तो पता चलता है दुनिया की मोहब्बत के चश्मे तो नहीं उबल सकते ना, गटर उबल रहे गंदगी के, इतनी स्मेल है उनके अंदर दुनिया की मोहब्बत की। क्योंकि हम रहे ना कुछ अहले दिल के साथ, ये चीजें सोहबत के बगैर खोपड़ी में बैठती नहीं है। तो मुझे याद है जब मैं मौलवी बनके जब मेरे असफार शुरू हुए ना, बड़े मालदारों में भी जाना होता था, जहाजों में सफर भी मेरा शुरू हुआ, मुझे अजीब दहशत होती थी। मुझे याद है मेरा ख्याल है 23-24 साल मेरी एज होगी, मैं इस्लामाबाद से कराची बाय एयर आ रहा था, नया ताजा मौलाना बना था मैं, ठीक ताजा, और 8-10 साल उलमा ही की सोहबत में बैठने को मिले, दाएं बाएं जाने का कहीं मौका मिला ही नहीं। कॉलेज से हम सीधा आ गए हजरत की सोहबत में, फिर सारा दिन उलमा तलवा, फिर जब वहां से निकले फारिग हुए तो फिर असफार शुरू हुए। तो मुझे याद है कि मैं इस्लामाबाद से कराची आ रहा था, तो मुझे जो अंदर लोग बैठे हुए थे ना, उनको देख के अजीब सी वहशत हो रही थी, अजीब सी वहशत हो रही। आप कहें भाई किस बात की वहशत, क्या वहशत किसे कहते हैं? ऐसी चीज मिल जाए जिससे इंसान को उनसियत ना हो, तो बेचैनी शुरू हो गई मुझे। वजह क्या था, उसमें ना जहाज में सब ज्यादातर लैंडलॉर्ड ताजिर लोग आ रहे थे इस्लामाबाद, सबके 3 पीस सूट टाई और ब्रीफ केस उनके हाथ में, और लग रहा था उनकी ड्रेसिंग से, और क्लीन शेव ज्यादातर उसमें, और उनकी गपशप, और बैठे हुए हैं ना तो लग रहा था सारे लैंडलॉर्ड लोग हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये नहीं होता, यानी अल्लाह माफ फरमाए, किसी को ऐसा बुरा कहना नहीं चाहिए। एक तो चेहरे पे नूर किसी के नहीं था, मैं कह रहा यार इनके चेहरों की रौनक कहाँ गई, बेचारों के चेहरों पे नूर क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है। फिर दूसरा ऐसे लग रहा कि ये माजरत के साथ ये बड़े जुमले कहने नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है सारे बेवकूफ बैठे हुए, यानी दुनिया मुसाफिर खाना है थोड़ी। और मैं आपको बताऊं उनमें से अक्सर अब दुनिया से जा चुके होंगे। आप बताओ ना, इतने साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अक्सर वो तो बड़ी उम्र के लोग थे ना सारे, अक्सर अब इस दुनिया में क्या है, उनको क्या पता कि ये जो मौलवी तुम्हारे साथ बैठा है ना, ये जब मेंबर पे बैठ के ये वाकया सुनाएगा तो हम में से अक्सर का इन्ना लिल्लाह उड़ चुका हो। यार ये तो 2 टके की औकात नहीं है यार दुनिया की। वो बातें वो करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों, बस यही फलाना प्लॉट, फलानी जायदाद, फलां प्रॉपर्टी, फलां ये ऐसी बातें। मैंने कहा यार ये किन चीजों से चिपके हुए हैं भाई, दुनिया को इतना फ्री कराओ जितना दुनिया में रहना है, आप दिल लगाने की चीज नहीं है।